A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new chapter of Class 12 Accountancy. As you know very well, in the last few videos we discussed a lots of numerical as well as theoretical topic of the chapter number 7, that is accounting for share capital, issue and forfeiture. So after completing the chapter number 7, now we will move to the chapter number 8, and the chapter number 8 is accounting for debenture, issue of debenture. So if we are looking for the last syllabus, previous year's syllabus given by the CBSE, so the chapter number 8 is accounting for debenture, issue of debenture, and chapter number 9 is related to the accounting for debenture, redemption of debenture. But basically, you know very well, due to the COVID-19 situation, CBSE decided to reduce the 30% of your syllabus. So according to the revised syllabus given by the CBSE for the academic session 2020-2021, the chapter number 9, that is accounting for debenture, redemption of debenture, that is known as the redemption of debenture, will be removed from the syllabus. So from your board examination purpose, so please listen carefully, for your board examination purpose, chapter number 8 is included in your syllabus, but chapter number 9 excluded from your syllabus. So now, without creating any delay, let's discuss some of the important theoretical concept related to the chapter number 8, that is accounting for debenture, that is issue of debenture. So what is accounting for debenture? So you know very well as in the last chapter we can see that the accounting for share capital, how we will record the transaction with the shares of the company. यानी अगर कंपनी शेयर इशू करती है, चाहे वो पार पे इशू करे, चाहे वो प्रीमियम पे इशू करे, चाहे वो शेयर को फॉरफीट करे, री इशू करे, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो, या you can see that the different any other kind of the situation when company issued its share for other than cash consideration. So इन सारे सिचुएशन में हाउ वी विल रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट. यानी चैप्टर नंबर 7 से हमें ये सीखने को मिला कि कंपनी अगर शेयर इशू करती है, शेयर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करती है, चाहे वो इशू हो, चाहे वो उसका फॉर फीचर हो, चाहे वो ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन हो, चाहे वो अंडर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन हो, कंपनी कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री पास करती है, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया है. सो उसी के एक नेक्स्ट लेवल है, दैट इज चैप्टर नंबर 8. इस चैप्टर में वी हैव टू फोकस ऑन द अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द डिबेंचर. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्टली वी क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ कंपनी, व्हाट आर द फीचर ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंपनी, एज वेल एज वी डिस्कस्ड व्हाट डू मीन बाय शेयर्स, what do you mean by share capital, how many types of the share, and how it will be recorded in our books of account. As well as in the similar nature, we have to discuss the definition of debenture, concept of debenture, and how we will record the entries in our books of account related to the issue of debenture. So you know very well, in the class 11th you also discussed the topic is what is debenture. Debenture is just kind of debt acknowledgement. Suppose you know very well कि कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं कि he can raise a fund from the financial institution, from the public, from the banks. First option is to raise a fund from the equity, from the shares. It means शेयर इशू करके वो क्या कर सकती है, फंड रेज कर सकती है, एज वेल एज लोन्स लेकर भी वो क्या कर सकती है, अपने फंड को अरेंज कर सकती है. सो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7 में ये डिस्कस किया कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और जब कंपनी लोन के थ्रू, इट मीन्स डिबेंचर इशू करके फंड अरेंज करती है, तो उससे रिलेटेड हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर. सो द फर्स्ट and very important definition given by the Palmer, as you can see that a debenture is an acknowledgement of a debt given under the seal of the company
and constituting a contract for the payment of a principal sum on a specified date and for the non-payment of interest at a fixed rate percent till the principal sum is repaid. So it is a very general definition given by the Palmer regarding the debenture. What is debenture? Debenture is an acknowledgement of debt. It means debenture एक डेप्ट का एक्नॉलेजमेंट है, यानी इसमें क्या करते हैं, जो भी डेप्ट कंपनी डेप्ट लेती है उसके बदले में एक आपको स्टेटमेंट या एक कह सकते हो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है, और वो डॉक्यूमेंट ये सर्टिफाई करता है कि कंपनी टेक अ लोन फ्रॉम द सर्टेन पर्सन, यानी कि उसने क्या लिया है, लोन लिया हुआ है अंडर द सील ऑफ द कंपनी, और ये सारी चीज़ें कंपनी के सील के अंदर रजिस्टर्ड होती है. सील मीन्स व्हाट, दैट इज़ यू नो वेरी वेल, कंपनी का एक आर्टिफिशियल सिग्नेचर विच प्रूव्स दैट कि डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द कंपनी. So you can see that two important points regarding the debenture. That is the first point, it is an acknowledgement of debt. Second, it is given under the seal of the company. Number third, contract for the payment. इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम ऑन अ स्पेसिफाइड डेट. ये हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने जितना भी लोन लिया है फ्रॉम द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द डिबेंचर कि हम उसका पेमेंट कब करेंगे, किस डेट पे उसका पेमेंट करेंगे, एंड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट ऑफ परसेंट टिल द परसेंट सम इज रिपेड. जब तक हम प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर देते, लिसन केयरफुली, जब तक हम प्रिंसिपल की वैल्यू पे नहीं कर देते तब तक हम इंटरेस्ट पे करते रहेंगे. सो इट इज़ वेरी कॉमन थिंग. अगर आप लोन लेते हैं मार्केट से तो लोन लेने के बदले यू कैन पे द इंटरेस्ट. कब तक इंटरेस्ट पे करते हो, जब तक कि आपने उसका पेमेंट ना कर दो. किसका, लोन का पेमेंट ना कर दो. सपोज कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ डिबेंचर के हेल्प से अरेंज किया, सो द डेप्ट फंड, इट इज़ नोन एज अ डेप्ट फंड बिकॉज इन दिस सिचुएशन कंपनी अरेंज अ फंड फ्रॉम द डेप्ट इंस्ट्रूमेंट. उसमें उसने डॉक्यूमेंट अरेंज किया, एक डॉक्यूमेंट फाइल किया कि हमारे ये डॉक्यूमेंट जिसके पास होगा उसी को मैं ये डॉक्यूमेंट दूंगा जब वो मुझे 10 लाख रुपए देगा. यानी उस डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा क्लियरली कि कंपनी ने आपसे इतने रुपए का लोन लिया है और इसका पेमेंट इस डेट को किया जाएगा. देखिए लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम ऑन ए स्पेसिफाइड डेट एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट परसेंट. यानी इस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है टाइम टू टाइम, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो एनुअली हो, वो क्लियरली मेंशनाइज्ड होता है कि हाउ मच इंटरेस्ट पेड ऑन द डिबेंचर टिल द प्रिंसिपल सम इज रिपेड. जब तक कि प्रिंसिपल वैल्यू पे ना हो जाए. प्रिंसिपल मतलब जैसे 10 लाख रुपए का मैंने लोन लिया और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअली, तो कंपनी 1-1 लाख रुपए हर साल इंटरेस्ट देगी और 1-1 लाख रुपए तब तक देती रहेगी जब तक कि वो 10 लाख रुपए जो लोन ली है उसने कंपनी से जो 10 लाख रुपए पब्लिक से जो 10 लाख रुपए का लोन लिया है कंपनी ने, वो जब तक उसको रिपे नहीं कर सकती. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन गिवन बाय द पाल्मर. नाउ वी विल मूव टू द सम ऑफ द कॉमन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन. So the first topic, that is you can see that on your screen, that company have mainly two source to fulfill its financial requirement. In the earlier chapter we have discussed how company is raised from the shareholder, and now in this chapter we will discuss the another source of long term finance, that is issue of debenture or bonds. A debenture is a written document, written acknowledgement. एक डिबेंचर का एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है, किस चीज़ का, ऑफ अ डेप्ट. डेप्ट का एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है टेकन बाय द कंपनी as these are issued under the seal of the company. So what is the basic definition of the debenture? That is, a debenture is a written acknowledgement of a debt. यानी डेप्ट का एक written acknowledgement होता है taken by a company, जो कंपनी लेती है लोन, और किससे taken by a company as these issued under the seal of the company. और ये सारे डॉक्यूमेंट किसके अंडर सील, मतलब किसके साइन के थ्रू इशू होते हैं, दैट इज़ अ कंपनी. And so the very basic common thing is a definition and meaning of the company. As you can see that the term debenture is used to acknowledgement of a debt given under the seal of the company and containing a contract of repayment of the principal sum at a specified date and for the payment of interest at a fixed rate until the principal sum is repaid. So you can see that the definition from the
term. So term is basically the term debenture basically used for the acknowledgement of the debt. यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो डिबेंचर क्या है, एक तरह का डेप्ट का एक्नॉलेजमेंट होता है जो कि कंपनी अपने सील के अंडर मतलब अपने साइन के अंडर बोरो करती है मार्केट से, पब्लिक से, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, दैट इज़ अ प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट, रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम, यानी जो पेमेंट लोन लिया गया है उसे वो कंपनी कब तक रीपे करेगी, एंड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पेमेंट किस रेट से पेमेंट करना है और पेमेंट कब तक करना है, जब तक कि प्रिंसिपल की वैल्यू पे ना हो जाए. सो यू कैन सी दैट द डिफरेंट डेफिनेशन गिवन बाय द different author as well as the Indian Companies Act. So one by one I will give you the best and very easy definition of the debenture. The first definition is given by the Tophan. Debenture is a document given by the company as a evidence of a debt to the holder usually arising out of a loan, most commonly secured by a charge. इट मीन्स अगर हम बात करें तो डिबेंचर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डिबेंचर के इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जिसे कंपनी डेप्ट के एविडेंस के रूप में इशू करती है. यानी कि अगर आप किसी को डेप्ट दे रहे हो, किसी को लोन दे रहे हो, तो उसके बदले आपके पास कोई एक वेरिफिकेशन चीज़ें होनी चाहिए ना, एक वेरीफिकेबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको आप जिसे आप प्रेजेंट करके ये कह सकते हो कि कंपनी ने आपसे लोन लिया हुआ है. सो बेसिकली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी डिबेंचर, तो डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट एज अ एविडेंस ऑफ डेप्ट, यानी एक एविडेंस है जो ये प्रूफ करता है कि कंपनी ने लोन लिया है और अराइजिंग आउट ऑफ अ लोन मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय ए चार्ज. और जनरली जो डिबेंचर्स होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई सिक्योरिटी होती है. सपोज अगर कंपनी आपके लोन को रीपे नहीं कर पाएगी तो सिचुएशन में कंपनी को अपनी किस एसेट्स को एज अ कह सकते हो चार्ज या एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है कि अगर वो लोन नहीं पे कर पाएगी तो उसके बदले उसे अपनी कंपनी का एसेट्स देना पड़ेगा. सो बेसिकली यू कैन सी दैट definition given by the Tophan. If you are talking about the definition of Indian Companies Act 2013, so we can see that according to Indian Companies Act 2013 section 2 subsection 30, it means debenture includes a debenture stocks. याद रखिएगा debenture में debenture stocks, bonds or any other instrument of a company evidencing a debt whether constituting a charge on एसेट्स और नॉट. ये भी याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि कंपनी जो भी डिबेंचर इशू करे उसके बदले उसे कोई ना कोई सिक्योरिटी रखनी पड़े या कोई ना कोई एसेट्स रखनी पड़े, ऐसा कंपलसरी नहीं है. कब जनरली कंपनी जो होती है वो अपने डिबेंचर को या लोन को सिक्योर करने के लिए, इट मीन्स ताकि उसको लोन देने में कोई कह सकते हो मना ना करे, रिफ्यूज़ ना करे. सो इस सिचुएशन में कंपनी जनरली अपने डिबेंचर के पीछे एक एसेट्स को एज अ चार्ज इम्पोज करती है. बट इन अदर सिचुएशन अगर हम देखें तो अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है तो लोग उसको लोन देने के लिए तैयार रहते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ चार्ज. सो बेसिकली डिपेंड करता है कि उस स्टॉक, उस बॉन्ड या उस एनी अदर लोन इंस्ट्रूमेंट के पीछे कोई एसेट्स रखा है या नहीं रखा है, एसेट्स को चार्ज में लगाया गया, चार्ज मतलब एज अ सिक्योरिटी रखा गया है कि नहीं रखा गया है, वो बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है कंपनी किस तरह की है. अगर कंपनी नॉन रेपुटेटेड है, उसकी गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं है, तो लोग जल्दी उसको लोन नहीं देना नहीं चाहेंगे. तो लोन को सिक्योर करने के लिए वो अपनी एसेट्स को क्या कर सकता है, एज अ चार्ज रख सकता है. बट जनरली अगर कंपनी गुडविल अच्छी है तो वो विदाउट एनी काइंड ऑफ चार्ज उसे मार्केट से लोन मिल सकता है. एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द जस्टिस चिल्टी, अ डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग ऑफ डेप्ट और एक्नॉलेजमेंट इट्स. यानी डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो ये सर्टिफाई करता है कि कंपनी ने डेप्ट लिया है, वो उसके अब की एक्नॉलेजमेंट पे करता है. सो यू कैन सी दैट द डिफरेंट डेफिनेशन. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो दैट इज़ द what are the some of the important topic related to the debenture. Debenture are issued by a company for three purpose. यानी कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है वो बेसिकली 3 रीजंस के लिए इशू करती है. द फर्स्ट वन फॉर कैश के लिए, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी विदाउट एनी काइंड ऑफ कैश, एंड एज वेल एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. यानी कंपनी कैन इशू इट्स डिबेंचर फॉर 3 पर्पस. यानी डिबेंचर इशू करने के बदले उसे क्या मिलेगा, सपोज इट इज़ एन डॉक्यूमेंट, ठीक, इट इज़ एन डॉक्यूमेंट, कंपनी ने डॉक्यूमेंट इशू किया और उसके बदले उसे क्या मिला, पैसा. सो दिस इज़ नोन एज द डिबेंचर इशूड फॉर कैश.
सपोज सेकेंड इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, डॉक्यूमेंट आपको दिया और आपके बदले उसके बदले आपसे कैश नहीं लिया, कोई बिल्डिंग ले लिया। एज यू कैन सी दैट इन द प्रीवियस चैप्टर वी इशूड अ शेयर अदर देन कैश। Oh, same as well as in this situation, company can issue its debenture for a consideration other than cash। यानी कंपनी जिस तरह से शेयर बिना कैश कंसिडरेशन के लिए इशू करती थी, किस किस चीज़ के लिए इशू करती थी, वो एसेट्स खरीदने के लिए इशू कर सकती थी, प्रमोशन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए इशू कर सकती थी और बिजनेस परचेस करने के लिए कर सकती थी। सेम एज लाइक इन दिस सिचुएशन, कंपनी कैन इशू its debenture for consideration other than cash। For example, company issued its debenture to pay off preliminary expenses, to pay off underwriting commissions on share and debenture, to pay off many kind of preliminary promotion expenses, as well as to purchase a business of another person, as well as to pay up any expenses regarding the promoters। सो यू कैन सी दैट कंपनी भी डिबेंचर को उसी तरह से कैश के अलावा इशू कर सकती जिस तरह से शेयर में हो सकता था। नंबर थर्ड, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये अलग से एक टॉपिक है जो इसमें आपको पढ़ना है कि डिबेंचर कैन बी इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी मीन्स सपोज कंपनी को मार्केट से लोन लेना है, किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक उस लोन को इशू करने, उस लोन को सिक्योर करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपना डिबेंचर क्या कर देती थी, सिक्योरिटी के रूप में यूज़ कर सकती है। तो इसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट वेन एवर अ कंपनी रिक्वायर्स फंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड इट मोस्टली इशू डिबेंचर। यानी जब कंपनी को लंबे पीरियड के लिए पैसा चाहिए, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो जनरली डिबेंचर इशू करती है। इनफैक्ट डिबेंचर आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। या भी ये भी याद रखिएगा कि डिबेंचर में पहले से ये क्लियर होता है द कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, यानी कंपनी उस पैसे को कब पे करेगी, रिटर्न करेगी, प्रिंसिपल अमाउंट, और इट इज़ ऑल्सो क्लियर एट अ फिक्स्ड डेट। मतलब कितना अमाउंट उसे पे करना है, हाउ मच अमाउंट पेड बाय द कंपनी एट अ फिक्स्ड डेट एंड हाउ मच अमाउंट दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स डेट एंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी याद रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिक्स रहेगा। सो बेसिकली यू कैन सी दैट the most of the important points related to debenture, that is debenture issued for the company for the three purpose: for cash, for consideration other than cash, for issue as a collateral security, and another things you can see that debenture issued by the company can issue the debenture, in a short word we can say company issued its debenture in a certificate form which contain the terms of contract, that is a fixed amount, fixed date and the fixed rate of interest. So these are the few important points related to debenture. Now we will move to the next topic, that is characteristics or feature of a company. So one by one I will discuss the features or characteristics of debenture. As you can see that the few features of the share, same as like in the situation of the debenture, there are a few characteristics or feature of the debenture are as follows. Number one, a debenture is a written document acknowledgement of debt taken by a company। यानी डिबेंचर क्या है, एक तरह का रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है डेप्ट का, यानी ये सर्टिफाई करता है कि कंपनी ने डेप्ट लिया है। नंबर सेकंड, डिबेंचर आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है, जिस सर्टिफिकेट में इट इज़ क्लियरली मेंशन कि कंपनी ने इतने रुपए का लोन लिया है, डॉट 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 पर्सन से लिया है। एज वेल एज डिबेंचर आर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। जो सर्टिफिकेट होता है उस पर कंपनी की सील भी प्रिंटेड होती है। एज वेल एज अस डिबेंचर होल्डर्स प्रॉमिस पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट। अब कंपनी उसमें ये प्रॉमिस भी करती है, यानी कंपनी प्रॉमिस करती है, किसको प्रॉमिस करती है, द डिबेंचर होल्डर को, जिस पर्सन ने कंपनी को लोन दिया है। पर्सन मीन्स चाहे वो कोई पर्सन हो सकता है, चाहे वो कोई बैंक्स हो सकते हैं, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। उनको ये प्रॉमिस किया जाता है द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट, यानी कि उनको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, विच इज़ कॉल्ड कूपन रेट। ये याद रखिए, व्हाट इज कूपन रेट, द इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन द डिबेंचर एंड रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि कितना हम पेमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिंग ऑफ द पॉलिसी, यानी जब वो डिबेंचर का ड्यू डेट आ जाएगा
तो उस डेट पे हम कितना पेमेंट करेंगे, कितनी अमाउंट पे करेंगे टू द डिबेंचर होल्डर्स, एज वेल एज it is very clearly in the debenture certificate that is after a specified period. It means principal amount is very clear as well as the period is very clear. So जैसे मैंने पहले भी बात किया कि आप देखा होगा आपने कि कंपनी एक एक्नॉलेजमेंट डेप्ट, डिबेंचर जो होता है कंपनी के लिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है, यानी जिसमें कंपनी एक्सेप्ट करती है कि यस मैंने लोन लिया है, उसमें एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में इशू करती है, उसमें कंपनी के सिग्नेचर्स होते हैं, उसमें कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को प्रॉमिस करती है कि ही पे अ पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट, यानी वो पीरियोडिक पेमेंट का मतलब क्या है, टाइम टू टाइम वो अपना इंटरेस्ट पे करेगी एक फिक्स रेट से, एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो क्लियर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, कितना पेमेंट करना है और कब कितने दिन के बाद करना है, 10 साल 15 साल 20 साल, द टाइम ड्यूरेशन इज़ वेरी क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, डिबेंचर आर यूजली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन दी एसेट ऑफ द कंपनी. जैसे मैंने कहा कि अगर आप मार्केट से भी लोन लेने जाओगे तो आपको अपनी कोई ना कोई एसेट्स को सिक्योरिटी या मॉर्गेज रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा, इन शॉर्ट वी कैन से दैट. सो डिबेंचर भी जब भी कंपनी इशू करती है तो उसके पीछे भी जनरली कंपनी अपनी कोई एसेट्स को चार्ज में लगाती है. इट मीन्स अगर वो कंपनी उस लोन का पेमेंट नहीं कर पाएगी आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो डिबेंचर होल्डर के पास ये राइट होगा कि वो कंपनी के वो सारी एसेट्स को क्या करा सकता है, सेल करा सकता है. अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट पे. द इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट इज़ अ पॉइंट नंबर 6. एज यू कैन सी दैट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी इज अलाउड टू इशू अ डिबेंचर हैविंग ए मैच्योरिटी डेट मोर देन द 10 years. याद रखिएगा ये चीज़. जनरली इट इज़ जनरली इट इज़ दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि नॉर्मल कंपनीज़ की बात करें तो कंपनी 10 साल से ज़्यादा के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकती. 10 साल का मतलब क्या है कि सपोज़ कंपनी ने आज कोई डिबेंचर इशू किया तो उसका रिडम्पशन पीरियड, रिडम्पशन मीन्स उसका जो पेमेंट पीरियड है, जो उसका प्रिंसिपल का वैल्यू आपको पे करना है, जैसे मैंने 10 लाख रुपए का मार्केट से लोन लिया तो वो 10 लाख रुपए मुझे 10 साल के अंदर लौटाना होगा. उससे ज़्यादा का मैं नहीं इशू कर सकता. ये नहीं कि मैं 15 साल 20 साल 50 साल के लिए मैं डिबेंचर इशू नहीं कर सकता. यानी इफ़ यू कैन सी दैट कि in a normal company you can see that a company cannot issue a debenture having a maturity date of a more than 10 years. and इसमें कुछ exception है. exception in case of company engage in manufacture projects where a company can issue debenture for more than 10 years but not more than 30 years. ये भी याद रखना है आपको कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रूल अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कंपनीज़ के लिए ये अलग है. यानी अगर हम नॉर्मल कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डिबेंचर इज़ 10 year, बट इन केस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ उनके लिए डिबेंचर की जो वैल्यू है वो 10 साल से ज़्यादा कर ले सकती है, 30 साल से कम, 30 साल से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता. यानी कि सपोज़ मेरी जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे वर्क करती है, सो मेरी कंपनी 10 साल से ज़्यादा के लिए डिबेंचर इशू कर सकती है. यानी डिबेंचर इशू कर सकती है 15 years, 20 year, 25 year, 27 years, 30 years, 29 years, बट नॉट मोर देन द 30 years. सो कुछ पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग द डिबेंचर, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट theoretical point related to the debenture. So one by one I will revise all the points for your convenience. The first point is written acknowledgement of debt. Number 2, issued in the form of certificate. Number 3, under the seal of the company. Number 4, periodic payment of interest at a fixed rate. Repayment of principal amount after a specified period. So ये कुछ चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा. एंड इट इज़ जनरली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी. यानी कंपनी अपनी एसेट्स को क्या रखती है, उसके बदले कोई ना कोई चार्ज करती है. चार्ज मीन्स गिरवी रख देती है. कंपनीज एक्ट में ये भी है कि नॉर्मली सिचुएशन में अगर देखा जाए तो कंपनी 10 साल से ज़्यादा के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, बट इन केस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स company can issue the debenture for more than 10 years but not more than 30 years. And at conclusion we can see that as such the loan raised by the issue of debenture is called a loan capital. ये याद रखिएगा
कि कंपनी जब भी डिबेंचर के थ्रू पैसा अरेंज करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोन कैपिटल बोलते हैं. एंड यू नो वेरी वेल, क्लास 11th में हमने पढ़ा है, दे आर बेसिकली टू सोर्सेज ऑफ द फंड, ओन फंड एंड बोरोड फंड. ओन फंड इज अ फंड बोरोड फ्रॉम द शेयर, यानी शेयर से जो हम पैसा अरेंज कर सकते हैं, विच इज़ नोन एज द ओनर्स फंड, ओन्ड फंड्स. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बोरोड फंड, लोन फंड, तो विच इज़ नोन एज द डिबेंचर. कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, मार्केट से लोन ले सकती है, डिबेंचर इशू करके वो लोन अरेंज कर सकती है. सो दस द डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. ये भी याद रखिएगा कि डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं. बट यू नो वेरी वेल, इक्विटी शेयर्स क्या होते थे, कंपनी के ओनर्स होते थे. एंड गेट द इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट, उनको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है. वेदर द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट और नॉट, ये भी याद रखिएगा, कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट देना ही देना. इट मीन्स इंटरेस्ट इज अ चार्ज फॉर एवरी कंपनी ऑन अ डिबेंचर, यानी कंपनी डिबेंचर्स पे जो भी इंटरेस्ट देती है वो एज अ चार्ज होता है. चार्ज मीन्स व्हाट, द कंपल्सरी एक्सपेंसेस वेदर कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट और नॉट. बट इन केस ऑफ द शेयर, यू नो वेरी वेल, शेयर पे क्या प्रोवाइड करती है कंपनी, डिविडेंड. एंड डिविडेंड मीन्स अ प्रॉफिट ऑन शेयर. एंड प्रॉफिट ऑन शेयर कब होगा, जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा. और जब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी प्रॉफिट डिविडेंड नहीं दे सकती, चाहे वो इक्विटी शेयर पे हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स पे हो. प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड मिलता है, इक्विटी पे मिलता है. बट डिबेंचर पे हम चार्ज पे करते हैं, हम प्रॉफिट नहीं देते, हम उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं. एंड इंटरेस्ट इज अ कंपल्सरी एक्सपेंसेस. द कंपनी बॉन्ड सच काइंड ऑफ इंटरेस्ट whether company incurs a profit or loss. And they have no concern with the management and control of the company. And you can see that कि कंपनी का इन सब के मैनेजमेंट से और कंपनी के ऊपर कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो क्रेडिटर्स होते हैं. अगर हम किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं तो कंपनी के डिबेंचर होल्डर के पास ये राइट नहीं होता कि वो मैनेजमेंट की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें या कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश करें. So as a short way, you can see that debenture holder are the creditors of the company and get the interest at a fixed rate. Whether the company makes a profit or not, they have no concern with the management and control of the company. So at the end of today's video, now we will move to the last topic of today's, that is a bond. What is bond? You know very well. In the business studies, you also discuss what is bond. So first of all, I want to revise the bond. Bond is just like a debenture. Generally bonds are issued by the government, but nowadays these are also issued by the semi-government and non-government organizations. यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो बॉन्ड एक डिबेंचर की तरह ही होता है. जनरली इसे मैक्सिमम वे में इसे गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे यू कैन सी दैट इन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के केस में. बट अगर हम कैपिटल मार्केट में भी देखते हैं तो बॉन्ड इशू होता है. सो बॉन्ड जनरली गवर्नमेंट इशू करती है. एंड इसके साथ साथ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको इशू कर सकती है. द मेन डिफरेंस बिटवीन द डिबेंचर एंड बॉन्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये बात याद रखिएगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिबेंचर एंड बॉन्ड, ये जनरली पूछा जाता है. तो जनरली अगर हम बात करें तो बॉन्ड और डिबेंचर में डिफरेंस जो होता है वो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है. The debenture are issued with a fixed rate of interest, while bonds can be issued without predetermined rate of interest. याद रखिएगा ये चीज़. यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो कंपनी क्या करती है, जब भी डिबेंचर इशू करती है तो ये पहले से क्लियर कर देती है कि आपको डिबेंचर खरीदने के बदले एवरी 6 मंथ पे आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी बॉन्ड्स, अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड्स में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता. बॉन्ड में कोई भी प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं किया जाता. दैट्स वाई बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज द डीप डिस्काउंट बॉन्ड और ज़ीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि उस पर कूपन रेट ज़ीरो होता है जैसे आपने देखा. दीज बॉन्ड आर इशूड एट हैवली डिस्काउंट. याद रखिएगा ऐसा क्यों होता है. दीज बॉन्ड्स आर यूज एट हैवली डिस्काउंट, यानी कंपनी क्या करती है, 100 रुपये का जो बॉन्ड होता है उसे कितने पे इशू करती है, डेट इज़ 90 रुपीज़ पे. Wait a minute. So at the end of this video, I want to tell you one thing which is very important for you, is that कि आज से इट मीन्स 6 अगस्त 2020 से आपके अकाउंटेंसी के 2 वीडियोस अपलोड होंगे. एंड यू नो वेरी वेल कि बिजनेस स्टडीज़ का ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट हो चुका है. सो
for some time we will focus on the accountancy only, and we will try to more focus on the accountancy, but please do not left the revision of the business studies. So I request to all the students, please make a note properly of the accountancy. I will share with you 2 videos every day of accountancy. The first video which are related to the theoretical points of the chapters, and the second video especially for the numerical parts of the chapter. So please watch videos regularly, and I hope you will follow the instruction given by me. So at the end, I hope you will make a proper notes, and स्टडी आपको लगातार करती रहना है। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी पॉइंट में दिक्कत आता हो, चाहे वो अकाउंटेंसी का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, सो यू आर फ्री टू आस्क मी। यू हैव अ 2 ऑप्शन। द फर्स्ट वन कि आप ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं, एज वेल एज आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।